ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੂਰਾ ਠਾਠ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਮੁਜਸਮੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 4 ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਉਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੇ, ਮਿਲਬੋ ਚਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵਿਨ ਹੱਬਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵਿਨ ਹੱਬਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਐਡਵਿਨ ਹੱਬਲ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਤਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਅਵਸਥਾ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ 0। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਣਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਵਿਨ ਹੱਬਲ ਧਮਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੀਏ।
गुरु अमरदास जी महाराज भी इस तरह का जिक्र करते हैं, उत पुत परलो शब्दे होवे। शब्द तो ही उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब इस रूहे जमीन ते किसी भी जीव का आउण तो पहला जिहड़ी शब्द की जरूरत है वह पहला परमात्मा नूं पई है। उत पुत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। महाराज कहते शब्द तो ही ये सारी उत्पत्ति हुई है, शब्द तो ही ये सारी जिहड़ी सृष्टि है वह बनी है। ते अगे देखो, असी कदी देखते हैं जिस चीज़ नूं खिलार दईए, बड़े ध्यान नाल सुनियो, उसे नूं इकट्ठियां करन वास्ते उसे चीज़ की लोड़ हुंदी है, उन्होंने जोड़न वास्ते उसे दी लोड़ है। एक उदाहरण दियां, तुसी मिट्टी की मूर्ति लै लो, उन्होंने तुसी तोड़ दिओ, उस मूर्ति नूं इकट्ठियां करन वास्ते जोड़न वास्ते फिर तुहानूं मिट्टी की लोड़ पवेगी। मेरी गल समझ गए? जिस चीज़ तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है परमात्मा तो, हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते जे उस परमात्मा तक पहुँचना तो तैनूं फिर शब्द की लोड़ है। मेरी गल समझियो, जिस चीज़ तो खिलारा पिया, जिन्हों महाराज कहते उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। जिस चीज़ तो ये सारा ब्रह्मंड बनया, ये सारा खिलारा बनया, जिन्हों महाराज कहते कीता पसाओ एको कुवाओ तिसते होए लख दरियाओ। दरियाओ का मतलब ये सारी सृष्टि बनी। ये सारी सृष्टि नूं जेकर फिर परमात्मा तक पहुँचना चाहती है ना, तो इनू फिर शब्द की लोड़ है। ये शब्द नाल जुड़ेगी तो उस परिपूर्ण परमात्मा तक पहुँच सकेगी। दूसरी उदाहरण जी, गल आपां थोड़ी जी पहला शब्द की करनी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी हयाती दे विच कह दिता सीगा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द नूं गुरु, और इसका प्रैक्टिकल जिहड़ा रूप सीगा वो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1708 नूं नंदेड़ साहब की धरती विच शब्द नूं गुरु थाप के उन्होंने जिहड़ा सीगा उन्होंने साडे सामने लियाता। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा कि जितों जिहड़ी चीज़ बनी है उहदे तो ही एक इंसान हनेरे दे विच चल रहा है, कि हनेरे दे विच चलण लग्या कि वो अपनी मंजिल ते पहुँच सकेगा? उहदे आसे पासे कुप हनेरा है, और रात नूं चलिया कि मैं अपनी मंजिल ते पहुँचना, मैनू लगदा कि वो अपनी मंजिल ते नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि हनेरा है। हनेरे दे विच अपने रस्ते तो जिहड़ा उहदा रस्ता है वो रस्ते तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, रस्ते तो इधर उधर हो जाएगा, भटक जाएगा। जदों तुसी उत्थे चानण करदे हो, फिर उन्होंने अपनी मंजिल दे बारे, रस्ते दे बारे पता लगता कि मेरा ये रस्ता इस तरह महाराज कहते हैं, जिस तरह बाहर एक हनेरा है, उस हनेरे नूं दूर करन वास्ते एक चानण की लोड़ है। सिखा इस तरह तेरे अंदर भी हनेरा है, उस हनेरे नूं दूर करन वास्ते तैनूं शब्द की लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है, बिन शब्दे अंतर आनेरा। अंदर दी गल, बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। ना वस्त, वस्त दे अखरी अर्थ इत्थे करांगे परिपूर्ण परमात्मा, जिन्नू तू प्राप्त करन आया। क्योंकि रोजाना पढ़ते हैं पई प्राप्त, ये असी पता किद्दां पढ़ जाने हैं, पढ़ गड्डी लदी है। पता नहीं कितनी बारी ये शब्द पढ़ के 50 साल 52 साल तो मेरी उम्र हो गई है तकरीबन, तो पता नहीं कितनी बार पढ़ के, पढ़ते जरूर आप सारे रल मिल के, ये गल जरूर है जी, लेकिन उहदे विचार नहीं करते। पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। फिर भी असी अवर काजां दे विच पए होए हैं। अवर काज तेरे किते ना ते मनाने प्रकाश दिहाड़ा, जे प्रकाश तो नहीं होया ना। प्रकाश का मतलब की है? रोशनी। रोशनी दे विच सानू की दिखाई देवेगा? रस्ता। वो तो होया नहीं, वो तो फिर उत्थे दे उत्थे रोजाना पढ़दियां पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काश तेरे किते ना काम।
मिल साध संगत भज केवल नाम। इसे नूं भगत कबीर जी कहते गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो। प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े। सब मुकदी चली सब मुकदी चली। तेरी उम्र बीतदी पई है किहड़े कंमां दे विच पिया किहड़े कंमां। मैं बेनती कर रहा सी बिन शब्दे अंतर अनेरा ना वस्त लहे ना चूके फेरा। फिर महाराज की करिए दसो जे अंदर हनेरा। ते महाराज कहंदे है सतगुर शब्द उजारो दीपा। आ कम कर शब्द नूं अंदर लैके जा। सतगुर शब्द उजारो दीपा। बिन स्यो अंधकार बिन स्यो अंधकार तेह मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। तेरे अंदर जिहड़ी कोठड़ी है ना जिथे हनेरा वै जिथे रतन पे हुए है जिन्हों महाराज कहते रतन लाल जाका कछू ना मोल। परे भंडार ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हन। गुरु अर्जन देव जी महाराज जो गुरता गद्दी ते विराजमान होए है ना ते विराजमान होने तो पहला आप जी नूं पता कि गुरु रामदास जी महाराज 3-4 दिन पहला ज्योति जोत समा चुके हैं ते बाद विच बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने जिहड़ी दस्तार की रस्म है उन्होंने अदा की। और गुरु रामदास जी अपनी हयाती दे विच बड़े ध्यान नाल सुनियो अपनी हयाती दे विच जिहड़ी गल कहण लगा गुरु नानक देव जी दे 958 शब्द 19 रागां विच एक पोथी गिनती नोट कर लियो। गुरु नानक देव जी दे 958 शब्द ते 19 रागां विच एक ये पोथी। गुरु नानक देव जी को पहला पई हुई पोथी भगत सहबाना दी जिहदे विच 773 शब्द है वो पोथी। 2 पोथियां। तीसरी पोथी गुरु अंगद देव जी महाराज दे 63 श्लोकां दी पोथी। गुरु अमरदास जी महाराज दे 885 शब्द ते 17 रागां दी पोथी ते नाल गुरु रामदास जी महाराज दे अपने 640 शब्द ते नाल 30 रागां दे विच ये जिहड़ी सारी समग्र बाणी है ना ये महाराज ने गुरु अर्जन देव जी नूं जदों ज्योति जो समाए है उहदे तो पहला उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की झोली विच पा दित्ती। ते जदों गुरु अर्जन देव जी ने उहदे दर्शन कीते ना ते अंदरों आप मुहारे कह उठे हम धनवंत कहते अज मैं अमीर हो गया। कहते असी अमीर किद्दां हुन्नी है। हम धनवंत भागट सच नाए हर गुण गावे है सहज सुभाए। प्यू दादे का प्यो एक है दादे ज्यादा है। साडा दादा एक हुंदा। साडे ना पंजाबी दी एक आम तौर ते बोली है जेकर कोई साडे घर विच कोई होर बजुर्ग दादे दा दोस्त आ जावे असी बच्चे नूं कहने आ पुत्र तेरे दादे दी उम्र दा वै इनू मत्था टेक। दादा है नहीं है लेकिन दादे दी उम्र दा है। आपां कहने आ ना भी तेरे दादे दी उम्र दा पुत मत्था टेक। इत्थे शब्द है प्यो है उन्हां दा गुरु रामदास जी ते दादे हन गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी। प्यू दादे क्योंकि दादा शब्द बहुवचन की गल कह रहा सानू देखना पवेगा कि ये बहुवचन किधर नूं लैके जा रहा। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निधाना। रतन लाल जाका कछू न मोल परे भंडार अखूट अतोल। खावे खर्च हैं रल मिल भाई टोट न आवे वध हो जाई। मैं बेनती कर रहा सी शब्द दी। महाराज कहते हैं एक बाहरली दुनिया दे विच हनेरा है उहदे वास्ते मंजिल ते पहुंचण वास्ते तैनूं रोशनी दी लोड़ है। ते जदों तेरी सुरत ने उस परमात्मा तक पहुंचना जां तेरी आत्मा ने उस परमात्मा तक पहुंचना जां तेरी सुरत ने उस परमात्मा तक पहुंचना तेनू अंदर एक दीवे की लोड़ है जिन्हों महाराज कहते सतगुर शब्द उजारो दीपा
बिनसियो अंधकार तह मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। रतन कोठड़ी खुली अनूपा। एक होर बेनती करा, गुरु नानक देव जी दी महाराज दी आमद तो पहला शब्द सी पहला, लेकिन उस समय दे चलाक बिरती वालियां ने शब्द का जिहड़ा फैलाव सीगा, जां इंज कह लीए शब्द नूं आम संगत विच पहुंचण तो रोक दिता। उन्होंने शब्द नूं ढक दिता ते आकार दे नाल लोकी जोड़ दिते। महाराज गुरु नानक देव जी ने हिम्मत की, आकार नूं पिछे कीता ते विचार दे नाल लोकाई नूं जोड़िया। शब्द सी गुरु नानक देव जी तो पहला। भगत जयदेव जी 1170 दे विच उन्हां दा बंगाल दी धरती ते प्रकाश हो रहा, शब्द तां उन्हां ने भी उचारिया। बाबा फरीद जी उन्होंने भी 116 बचन, जिन्हां दा कल प्रकाश दिहाड़ा सी, बाबा फरीद जी का 116 बचन हैं उन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच 112 सलोक ते 4 शब्द। शब्द तां पहला भी सी, लेकिन इस शब्द दे फैला नूं, इस शब्द दे प्रसार नूं चलाक बिरती वालियां ने रोक दिता, तां जो ये आम लोकां तक ना पहुंच सके। इत्थे फिर बाबा कबीर जी का एक बचन मैं आप जी नूं करां। बाबा कबीर जी कहंदे आ, कबीर कागज की ओबरी मस्के कर्म कपाट पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी वाट। इन्हां चलाक लोकां ने की कीता, जिस शब्द दे आसरे दे नाल पंथ ते चलना सीगा, रस्ते ते चलना सीगा, उस रस्ते नूं विचों पाड़ दिता तां जो ये परमात्मा तक ना पहुंच सकन। मैं नहीं कह रहा, बाबा कबीर जी कह रहे हैं। कबीर कागज की ओबरी, आ जिहड़ा कहंदे उस समय वेद सीगे, शास्त्र सीगे, ये इदां बने सी जिद्दां जेल खाना हुंदे। क्यों जेल खाना मैं शब्द वरतिया? मैं नहीं वरतिया, बाबा जी कह रहे हैं जेल खाना तां क्योंकि इन्हां दे विच कर्म कांडां तो इलावा होर कुछ नहीं सी। असी बचन भी पढ़ते हैं, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सारना ना। तत्ते सारना, तत् दा अखरी अर्थ है परमात्मा, जिहड़ा आपां पहला शब्द वस्त लिया सी तत्ते सारना। ये गुरु अमरदास जी कह रहे हैं आनंद साहब की बाणी दे विच। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। कबीर कागज की ओबरी मस के कर्म कपाट, इस जेल खाने दे विच लिखिया की सीगा, शाही दे नाल मस के कर्म कपाट पाहन बोरी पृथ्वी। इस पत्थर दियां मूर्तियां ने, इस पत्थर ने दुनिया नूं डोब के रख दिता। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी वाट, पंडित पाड़ी वाट। इसे नूं गुरु नानक देव जी कहंदे है, देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगू क्या दे, पाहन नीर पखालिए भाई, जल मह बूडे ते। इन्हां मूर्तियां ने तेनू कख नहीं देना। मैं उदाहरण दिया आप जी नूं, जेकर तुहाडे बच्चे स्कूलों च नहीं पढ़ते तो आपां ते स्कूलों चों पढ़ के आए हैं ना। हुण सानू कोई विद्वान कवे, पिंड तो कवे, भलापुरश कवे, ओ यार तेनू स्कूल जाण दी की लोड़ है, तू इदां कर, जिहड़ा तेरा प्रोफैसर जां मास्टर है ਉਹਦੀ फोटो खिंच लै ते अपने घर दे विच लटका दे ते उतों ज्ञान लई जा। कमाल दी गल कि ਉਹਦੀ फोटो खिंच के घर लटकाउण दे नाल उतों ज्ञान मिलेगा? नहीं साध संगत जी, ज्ञान तां उदों मिलेगा जदों ਉਹਦੇ सामने बैठांगे, ਉਹਦੀ रसना दे विचों निकले हुए जिहड़े बोल होणगे, ਉਹ बोलां दा जदों अंदर आपां ग्रहण करांगे, ज्ञान तां उदों मिलेगा। ये कुछ किया। इनू फिर गुरु नानक देव जी ने, महाराज कहते देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगू क्या दे, पाहन नीर पखालिए भाई, जल मह बूडे। इसे नू बाबा कबीर जी कहते आ, बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर न्याई, ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गत दुहोना पाई। इस गल तो फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने आकार नूं पिछे कीता
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ। ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ परिभाषा। माया की परिभाषा ले लीए, माया किसनों आखी है, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख जियो बद्ध है, हौमे कर्म कमाए। ये माया की परिभाषा। माया किसनों आखी है, क्या माया कर्म कमाए। माया करदी की है, कहते दुख सुख जियो बद्ध है, हौमे कर्म कमाए। ते रात आपां परिभाषा लई सी आनंद दी, आनंद शब्द की। ते महाराज आनंद साहिब की बाणी में 7वीं पौड़ी में महाराज कहते हैं, आनंद की है, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया जानिया, आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। हुण अगली पंक्ति में आनंद शुरू होने लगा, कर कृपा किल बिख कट्टे, अंदरों तेरे पांच जिहड़े विकार है महाराज ने वढ़ते। कर कृपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। ये सारे आनंद दे गुण है। ज्ञान अंजन सारिया, तेरियां अखां दे विच ज्ञान दा सुरमा महाराज ने पाता। ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सचे सवारिया। कहे नानक यह आनंद है, कहे नानक यह, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आनंद। आनंद साहब की बाणी तुसीं रोजाना पढ़ते हो, 7वीं पौड़ी में महाराज। खैर मैं जी बेनती करा अपने प्रकरण ते आवां, जे कोई सानू पुछे कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहब की परिभाषा दे सकते हो, विद्वानां ने गुरु ग्रंथ साहब की परिभाषा दे विच दस्सिया कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच थोड़े शब्दां दे विच बयान करना होवे ते असीं कह सकते हैं इहदे विच सच है। नंबर 1 गल। दूसरा, सच तक किस तरह पहुंचना है, ये महाराज ने इस रस्ते दसे हुए हैं। एक सच की है, सच तक साड़ी पहुंच किद्दां होवेगी। तीसरा, जिन्हां ने सच की प्राप्ति की है उन्हां दा जीवन है। ते चौथा, जिहड़े सच तो बेचारे रह गए है उन्हां दा जिक्र किया होया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है जी, 4 चीज़ां। सच की है, सच तक किद्दां पहुंचिया जावे, ਜਿਹੜੇ सच तक अज तक पहुँच चुके हैं उन्हां दे जीवन का जिक्र है, ते ਜਿਹੜੇ सच तो विरवे रह गए है, ਜਿਹੜੇ सच तो वांझे रह गए है जां मनमुख कह लीए, उन्हां दा जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब दे, उन्हां दा जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। आपां बेनती कीती सी, ये जो शब्द है, ये जो सच है, सच तक पहुँचण दे लई महाराज सानू किहड़ा तरीका दसदे। ये किद्दां जिहड़ी बाणी है ये महापुरुषां दे अंदरों आई है। महाराज सब तो पहला मैं प्रमाण लवांगा धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे एक श्लोक दा। महाराज कहंदे आ, अमृत बाणी तत वखानी। ये बाणी वो है जिहड़ी रब दी व्याख्या कर रही है। अमृत बाणी तत वखानी आई किदां, ज्ञान ध्यान विच आई। बड़े ध्यान, बस इन्हां 3-4 शब्दों च महाराज ने सारा कुछ दसदा कि बाणी आई किदां। अमृत बाणी तत वखाणी, इत्थे तक गुरबाणी की सिफत की गई है, अमृत बाणी तत वखाणी। लेकिन ये बाणी आई किदां? महाराज कहंदे ज्ञान ध्यान विच आई। जदों तेरा ध्यान उस परमात्मा दे रूहानियत ज्ञान दे नाल ओत-पोत होया, एकमिक होया, उस समय अंदरों बाणी आई। इसे नूं खोल के बाबा कबीर जी का एक बड़ा प्यारा वचन है। बाबा कबीर जी कहते हैं, एक जोत एका मिली, एक जोत एका मिली। ध्यान
सुनियो, ज्ञान ध्यान विच आई। एक ये गल रखियो याद, अगली गल याद रखियो, शब्द गुरु सुरत धुन। सुरत धुन जिहड़ी सुरती है ना साडी, ਉਹ शब्द की धुनी दे विच लगी हुई है, ते जिहड़ी सुरती है वो ਉਹਦਾ चेला है गुरु दा, क्योंकि शब्द गुरु है ते जिहड़ी साडी सुरती है ਉਹਦੇ विच लगी है, ਉਹਦੀ धुनी विच ਉਹ ਉਹਦਾ चेला है। बड़े ध्यान दे नाल कहंदे ज्ञान ध्यान विच आई, सुरत धुन चेला। हुण बाबा कबीर जी की कहते, मैं तां तुहानूं 3 प्रमाण दिते है कि इन्हां महापुरुषां, ये वो महापुरुष हन जिन्हां दा शरीर ते वखरा वखरा है, रंग इन्हां दा वखरा वखरा है, लेकिन इन्हां दी अंदर दी जिहड़ी आत्मा ना, वो सिर्फ एको ही गवाही दे रही है, साहिब मेरा एको है, एको है भाई। अंदर दी गवाही इन्हां दी एक ही है, जिन्हों महाराज कहंदे जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर। जोत उन्हां दे अंदर, सारियां दे अंदर एक ही है। इसे नूं फिर गुरु नानक देव जी कहंदे सब मह जोत जोत है सोए। बिल्कुल कहंदे कोई फर्क नहीं, कहंदे जोत में जितने महापुरुष इहदे विच बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच विराजमान, सारियां दी जोत एक। बाबा कबीर जी कहंदे बाणी किदां आई, एक जोत एक का मिली। जदों कहंदे मेरी आत्मा एक जोत एक का मिली, उस परमात्मा दे नाल कहंदे मिल गई। सुरत शब्द नाल कह लो, आत्मा परमात्मा ना कह लो। एक जोत एक का मिली, किंबा होए, ये सवाल इत्थे हुण, किंबा होए महोए, फिर जवाब है महोए। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, किंबा होए दा आखरी अर्थ है कि जेड़ी जोत आत्मा परमात्मा नाल जुड़ जाती है, वो बाद विच टुट सकती है या नहीं टुट सकती। जवाब है महोए, बिल्कुल नहीं कहते। जेड़ियां आत्मावां उस परमात्मा नाल जुड़ गईयां, जां जेदी सुरत उस शब्द दे नाल जुड़ गई, दुनिया की कोई ताकत नहीं उन्होंने तोड़ सके। मैं तुहाडे कोल इतिहास की साखी दियां। 1675 का समा है, चांदनी चौक की धरती है। सत्कारयोग भाई साहब भाई मती दास जी, उन्हां दे सीस के उपरों आरा चीरिया जा रहा, चीरन का हुक्म होया, ते उन्होंने इक्को गल कही, कहंदे तेरी आखिरी ख्वाहिश की है? कहंदे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जदों तुसी आरा मेरे सीस दे विचों चीरो ते मेरा मूँह जिहड़ा वो गुरु वल होवे, क्योंकि करवट भला ना करवट, तेरा आरा ते मैनू चंगा लगदा। करवट का आखिरी अर्थ है आरा, करवट का आखिरी अर्थ है पिठ। कहंदा गुरु जे तू मेरे वालों पिठ किते कर ली ना, ते फिर मैं तेनू जिन्ना मर्जी मनावा, मैं तेनू नहीं मना सकता। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां, ते भाई मती दास ने कहा दूसरी मेरी मंग ये है कि मैं लगा जपजी साहब का पाठ कर, ठीक है, ते तुसी आराम नाल आरा बिल्कुल सीधा चीरियो, टेढ़ा ना किते कर दिओ, लोग किते ये ना कहन भी तकलीफ दे नाल थल्लों हिल गया ते आरा जिहड़ा सी वो टेढ़ा हो गया, किते ये ना होवे। उत्थे फिर ना एक विद्वान लिखदा, 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर। मैं बेनती कर रहा कि जिन्हां दी सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, वो नहीं टुटदी, दुनिया की ताकत उन्हों नहीं तोड़ सकती। 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुन ओ काजी तरतीर। रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भौंदा, आरा मैनू भौंदा, धर्म छड्डना पाप, टुकड़े इस शरीर दे घरेंजे लख करोड़, तापी धर्म ना छड्ड सां, तेरा दीन नहीं है लोड़। आरा प्यारा लगदा, प्यारा कदों बनाए, सिर जावे तां जाए मेरा सिक्की सिदक ना जाए। सिर जाए तां जाए मेरा सिक्की सिदक ना जाए, सिर जाए तां जाए मेरा सिक्की सिदक ना जाए, सिर जाए तां जाए मेरा सिक्की सिदक ना जाए।
आरा प्यारा लगदा, आरा प्यारा लगदा, प्यारा कदों बनाए, प्यारा कदों बनाए, सिर जाए तां जाए मेरा, सिखी सिदक ना जाए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸਰੀਰ ਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੀਨ ਪਕੜ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਣੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਾਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਤਾਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭੜੂਏ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਭੜੂਏ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਣੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਾਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ, ਜਿਤਕਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਤੋਹੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਕਢਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉ ਕਾਂਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਵਰਤੀ ਬਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋ ਸੁਨੇ।
कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहे कबीर संसा नहीं, अंत परमगत। राती भी बेनती कीती सीगी, ए बाणी महापुरख की निज कर वासा। ये बाणी महापुरुषां दी है जी। ये बाणी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे हुए जिहड़े महापुरुष है उन्हां दी बाणी। महाराज कहंदे कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहे कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। हुण ये बाणी आउण दा समां की सीगा। लो जी, आपां 4 विद्वानां ने ना इहदे प्रकरण तैयार कीते आ। तकरीबन हर विद्वान उही बोलदा ते मैं भी नैचुरली गल है उही बोलांगा। आप जी देखो 4 प्रकरण। पहला प्रकरण की है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। जदों बाणीकार इकल्ला बैठा ते रब नाल गल करनी चाहिए, उन्हें रब की सिफत करनी चाहिए। उस समय गुरु नानक देव जी कहते मरदानिया रबाब छेड़, काए सिफत खुदा दी करिए। सिर्फ भाई मरदाना जी है, नाल गुरु नानक देव जी है, ते तीजा उन्हां दा रब है, चौथा लागे कोई नहीं है। दरिया के किनारे समुंदर के किनारे बैठे है, ठंडी ठंडी पौन आ रही है, वो हवा समुंदर के पानी को स्पर्श करके महाराज के शरीर को लग रही है, पावन सी लग रही है। तो महाराज कहते मरदानिया रबाब छेड़, काए सिफत खुदा दी करिए। उस समय महाराज की कहते तू दरियाओ, तू संगत नूं संबोधन नहीं किया, रब नूं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ते रब है। बस तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला। जदों परमात्मा की सिफत में जुड़े है, तो जदों गुरु नानक देव जी ने परमात्मा दे अगे उहदे नाल गलबात करनी है, होर कोई बिच नहीं है, तो परमात्मा नूं कहंदे आ रब्बा मैं तेरे नाल गल करनी है। तो रब कहंदा बोल। कहंदे इदां नहीं बोलना, लागे मरदाना बैठा किते ये ना सुन लवे। तो फिर कहंदे की करा? कहंदे इदां कर, अपने कान मेरे लागे कर। मैं कहना यारी पाउण दा मजा आ गया गुरु नानक दा रब दे नाल, कि रब नूं कहंदे आ कान लागे कर। ते रब साध संगत जी कान ला के साडी अरदास साडी बेनती भी सुनता है। सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुनो अरदास जियो। दे कान सुनो। मैं एक बेनती करा, मेरी गल का गुस्सा ना करियो। आ हुण भाई साहब ने अरदास करनी है, एडी लंबी लिस्ट इन्हां दे कोल होनी है। जे बाई चांस भाई साहब कोलों किते गलती हो जाए, कोई ना रह जाए, तो बाहर जाके घेरना भी तू साडा नां नहीं लिया, कमाल की गल है बई, माफ़ करना मैं जिहड़ी गल कहना, ये तो होमे का प्रतीक है। गुस्सा ना करियो, ये होमे का प्रतीक है। सब सृष्ट सेवे। हुण गुरु नानक देव जी अरदास किदां कर रहे हैं, सुन लो बड़े ध्यान नाल। महाराज का शब्द है जी तिलंग राग विच, कहंदे यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, फारसी भाषा दे शब्द है। यक दा खरी अर्थ है एक, अर्ज मैंने बेनती, यक अर्ज गुफ्तम, गुफ्तम मैंने गुफ्तगू करनी है तेरे नाल, रौला नहीं पाउणा माइक दे विच मैं। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, तेरे अगे पेशकार करनी, दरगोश कुन करतार। हे रब्बा कान मेरे लागे कर। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दरगोश कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दलदानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेचन दानी। जन पिसर पदर बिरादरा, कसनेस दस्तंगीर। कहते आ जिहड़ा मेरा परिवार है ना, जो मेरा आखिरी समा आया, किसी ने मेरी बांह नहीं फड़नी, किसी ने मेरी। एक गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जन पिसर पदर बिरादरा। जन का खरी अर्थ है औरत। जे जन दे जज्जे थलों बिंदी हटा दोगे तो संस्कृत भाषा में जन वड़ जाएगा, वह अर्थ बन जाएगा सेवक। हरजन ऐसा, उथे जन हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही। देखो बाणी का भेद भी है जी, ये ना इन्हां दियां मात्रावां दे विचों बड़ा इन्हां दे विच डूंगा मसला है जी, जो आप विचारते हैं। जन पिसर पदर बिरादरा, कसनेस दस्तंगीर। कहते आ जेड़े मेरे घर वाली है, मेरे पुत्र है, मेरे रिश्तेदार है, इन्होंने किसी ने मेरी कहते बाणी फाड़ी। मैं बेनती कर रहा, बाणी कदों आई? जदों बाणीकार इकल्ला बैठ के परमात्मा दे नाल। ते भगत रविदास जी कहते हमसर दीन दयाल ना तुम सर। तुम इशारा कर दे रब, मैं ते तू। कहते हमसर दीन दयाल न तुम सर,
अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै, हूं बल बल जाऊं। अच्छा एक बेनती करा मैं तुहानू भी, तुसी भी किते घरां दे झमेलियां तो दूर होके बड़ा शांतमई होके इस छेवें विकार नू बंद करके किते बाणी पढ़ के देखो, स्वाद ही कुछ होर आवेगा। मैं तां कीती कि ये सारे महापुरुषों का सानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चों आया। भगत रविदास जी कह रहे हैं, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै, हूं बल बल जाऊं रमैया कारने। रब्बा दस तू मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं गा, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। इहदा मतलब कि मैं पिछले जन्मां दे विच भी सी, परंतु मैं तेरे नाल जुड़ नहीं सकिया। ये भगत कबीर जी कह रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ते कहंदे इस जन्म दे विच भी मैं दावा नहीं करदा, पर आस रखदा, कह रविदास आस लग जीवों। निमरता देखो किन्नी है, दावा नहीं कि मैं तेरे नाल मिल जावांगा, सिर्फ आस है मेरे अंदर। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। जदों बाणीकार इकल्लियां बैठ के उस परमात्मा दी शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा जोड़दा, अंदरों बाणी आई। दूसरा कारण, जदों कोई अनमत वाला मिलिया जी, अनमत वाला कोई पखंडी मिलिया, कोई कर्मकांडी मिलिया, उदों अंदरों बाणी आई। गुरु नानक देव जी महाराज दी 9 साल दी आरबला ते पंडित हरदयाल आए आ जी। घर दे विच समागम रखिया गया कि पुत्तर नूं हिंदू धर्म च वाड़ना, ते पुत्तर दा ब्राह्मण जिहड़ा उहदा गुरु है वह ब्राह्मण बनाउणा। ते उस समय जनेऊ लैके आया, ते महाराज कहंदे मैं तेरा जनेऊ पा लेना, 2 मिनट मेरे कोल बह ला। बह गया जी, बड़ा चौड़ा हो के भी चलो जी बह के जी पा लेना नहीं हुण। ते महाराज कहंदे मैनूं ये दस, तेरे जनेऊ दे विच 4 गुण हैगे? कहंदा कमाल दी गल करदा, किहड़े 4 गुणां दी गल करदा? फिर महाराज कहंदे पहला गुण सुन, दया कपह, कि इहदे अंदर दया हैगी। ते माफ करना, ये 4 गुण जे अमृत धारी दे कोल भी नहीं हैगे ना, ते उन्हें भी ये जनेऊ तो भी होर कुछ बहुत कुछ भैड़ा पाया होया। मैं वो गल ना करा। दया कपा कल एक वीडियो आई है साध संगत जी सामने, मैं ना लै दिया, मैनू कोई डर नहीं है। कोई बाबा सुरिंदर सिंह फरीद है, वो किते संपट पाठ करन गए, इल्जाम ला रहे बच्चे ते चोरी की है, ते बच्चे नू इदां डांगा दे नाल कुट रहे आ, वो किते कहण दी गल नहीं। अज खबर आई है बच्चा मर चुका है, जो मेरे को खबर आई है, पता नहीं सच है या झूठ है। फिर कित्थों दया यार, जे आ पा के भी दया नहीं आई तो फिर कित्थों आनी है? दया कपह संतोख सूत, दूसरा गुण है तेरे सूत दे विच संतोख होवे, जिन्हों महाराज कहंदे आ बिना संतोख नहीं कहो राजा। ये रज्जण की गल इत्थे हो रही है, राजे की गल नहीं हो रही। बिना संतोख नहीं कहो, दया कपा संतोख सूत, जत गंडी की जड़ियां गंडा पाइया, इहदे अंदर जत है। जत दे मैं अर्थ कर दिया, एको ही पंक्ति ना तुसीं समझ जाना। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं, आ है जत दे जत। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों महाराज जपजी साहब की रचना करते हैं, पहली पौड़ी सवाल की है, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै। दास इत्थे आउण तो पहला आस्ट्रेलिया सी, विसाखी ते उत्थे सीगा, उत्थे गुरुद्वारा कीजबरो अमृत संचार होना सीगा मेरे वीक तो पहला। मैनूं उन्होंने कमेटी वाले ने हुक्म किया, कहंदे भाई साहब जी सिर्फ ते सिर्फ ना अमृत की गल करनी है, क्योंकि खंडे बाटे की पौल तैयार होनी है, बाटा तैयार होना, असीं चाहुंदे हां वध तो वध। उत्थे फिर दास ने ये जिहड़ी पौड़ी है ना, गुरु नानक दी आखिरी पौड़ी 38वीं पौड़ी, जत पहाड़ा धीर सुनियार साध संगत जी, इहदे विच खालसे दे 7 गुण रखे महाराज ने। किते मौका मिलिया फिर दोबारा, ते 7 दिन लगातार उत्थे कथा की। जत दा खरी अर्थ की मैं बेनती कर रहा सीगा, महाराज कहंदे दया कपह संतोख सूत, जत गंडी 7 वट, इहो जनेऊ जी का
है ही तो पांडे घत, जे ये है तो लिया मैं पाउण नूं तैयार है। तो वह बेचारा चुप करके उतों चल गया। जो अनमत वाला सामने आया उदों अंदरों बाणी आई, उदों अंदरों बाणी आई। तीसरा जी, जदों कोई आया अंदर उहदा सड़िया पिया भुजिया पिया ते आके गुरु नानक नूं कहंदा मेरे अंदर ते अग लगी हुई है। ते महाराज ने जो अंदर देखा कहंदे भड़ूए तेरे अंदर अग दी एक नदी नहीं चल रही, चार चार नदियां चल रही। कहंदे एक होवे, मैं अपनी गल करा, एक होवे ते फायर ब्रिगेड मंगा के ते पानी पा के बुझा दिए। जिहदे अंदर चार, महाराज कहंदे है, महाराज कहंदे चार नदियां किहदियां, हंस हेत लोभ कोप, चार हो गईयां। चारे नदियां अग पवे दजे नानका तरिया करमी लग। महाराज कहंदे है आके कहंदा कहंदा महाराज मेरा अंदर सड़दा पिया। ते महाराज कहंदे रुक मैं तेनू दसदा तेरा सड़न दा कारण की है। जियो तपत है बारो बार, अंदरों बाणी आई महाराज दे, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। क्यों तपदा पिया, जैतन बाणी बिसर जाए ज्यों पक्का रोगी। भाई साहब तुहाडा टाइम बड़ा दसिया एग्जैक्ट, तुसीं 12 बजे नहीं नहीं, जैतन बाणी जियो तपत है बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार। जैतन बाणी बिसर जाए ज्यों पक्का रोगी, ज्यों पक्का रोगी। अंदरों बाणी आए महाराज दे, कहंदे बाणी तो टुटिया तां तेरे अंदर अग लगी हुई। इसे करके ना एक ना गुरु रामदास जी की सिफत सफैया है, बड़ा प्यारा सफैया। जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। ओए ओ सतगुर दे चरना दा सिमरन विच पहुंच जा, तेरे अंदर दी अग जिहड़ी है वो महाराज खत्म कर देंगे। जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटे किन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निध पावे। वो सतगुर का नाम की है, सोई रामदास गुर। एक मैं बेनती करा, तुसी विदेश की धरती ते रहिंदे हो, दो चीज़ां तुहाडा हथ फैला के इंतजार करदियां पईयां। एक तो है गुरु रामदास का दरबार। जदों भी पंजाब जाते हो ना, 2-4 घंटे 5-7 घंटे आराम करके सब तो पहला दरबार साहब जाया करो, क्योंकि गुरु रामदास तुहाडा बहुत देर तो इंतजार कर रहे हैं। तो महाराज कहते कोई गल नहीं पुत, मैं तेनों कुछ नहीं कहना, पर जदों आना ना उदों तू मेरे कोल आना। प्रोफैसर पूरन सिंह एक बड़ी प्यारी गल लिखते हैं, कहते सिखा जदों दरबार साहब जाना तो दौड़ के जाना, तो जदों दरबार साहब के अंदर एंटर होना ना, तो अपना कला कला कदम जदों परिक्रमा करनी है बड़ी हौली हौली करनी। कहते प्रोफैसर साहब पिछों कहते दौड़ के जाना, ड्योड़ी उतर के हौली हौली। कहते हाँ पिछों तां जल्दी जाना तेरा समा घट लगे, तेरा समा बच जाए। जदों उत्थे जाना परिक्रमा हौली हौली तां करनी। देखी मेरे सिखा कली कली सिल दे उपर, कले कले पत्थर दे उपर, कले कले संग मरमर दे उपर बड़े ध्यान नाल पैर रखी, पता नहीं किन्ने कु शहीदां दे इहदे थले सिर नप्पे हुए है। मैं बेनती करा जदों दरबार साहब जाओ, महाराज पंजाब जाओ, पहला दरबार साहब, दूसरा अस्थान साहिबजादे तुहानूं उडीकदे पे है। साहिबजादे तुहानूं उडीकदे पे है, जिन्हां दी असी बदौलत विदेशों के विच असी शान नाल कहने हैं साडे कोल ओ खजाना जिहड़ा 6 ते 9 साल की उम्र दे विच सूबे सरहंद दीयां दीवारां दे विच नहीं डोलिया। उन्होंने दीवारां ते डेग दित्तियां पर आप नहीं ओ डिगे। ये साडे कोल सिर्फ ते सिर्फ सिख कौम को खजाना। खैर मैं बेनती कर रहा, जदों अंदरों बाणी आई, जदों कोई जी सड़दा वाला आया, अंदर तपदा वाला आया, अंदर बाणी आई। महाराज कहंदे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जैतन बाणी बिसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। ते चौथा कारण की सी बाणी आउण दा? चौथा कारण सीगा जदों किसी ने आके सवाल किया कि महाराज मैनू दस्सिया जावे
कि मैं परमात्मा के रस्ते ते किस तरह चल सकदा। उदों बाणी आई, आके उन्हें पता की क्या, हूँ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख। ये तो पहला पंक्ति आती है, ए मन तैकू डेव सा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। मन मैं तेनू देता, मैनू रस्ता दिखाया जावे। उथे फिर महाराज कहंदे है, त्यागे मन की मतड़ी, पहला कम त्यागे मन की। एक ना कवि संतोख सिंह जी का प्रसंग है, 101 अरदास, उहदी कथा करन दा दास नूं मौका मिलिया 5-6 दिन। साध संगत जी, तुहाडे इस रूहे जमीन ते आउण तो पहला, मां दे गर्भ दे विच पैण तो पहला और परमात्मा की दरगाह तक 101 अरदासां लिखियां। बहुत बाकमाल उन्हां दा प्रसंग है। मैं तां लिया, त्यागे मन की मतड़ी, कोई भी काम अपनी मत नाल नहीं करना, कोई भी काम गुरु दे कोल आके अरदास करके उहदी शुरुआत करनी। त्यागे मन की मतड़ी, ते जे तुसी गुरु को नहीं आ सकते तो कोई चक्कर नहीं, बाहर बैठे भी अरदास अपने आप च कर दो। महाराज इन्ना ही कह दिओ, महाराज बख्शिश करी, मैं तेरी ओट दे नाल काम शुरू कर लगा। बस एक अरदास साडी हुंदी है संगती अरदास, एक साडी अरदास हुंदी है निजी अरदास। संगत विच असी पूरे ऐ नाल शिंगार के, क्योंकि हर बंदा देख रहा भाई साहब कित्थों किते हिलदे आ ते मैं जाके इन्हां नूं फिर बाहर हिलावां, जानी कि। पर एक अरदास साडी हुंदी है निजी अरदास। वो निजी अरदास विच असी इन्ना ही कह दईए, मालका तेरा ओट आसरा लैके मैं काम की शुरुआत कर लगा, ते मेरे ते किरपा करी। मैं इत्थे तक कहना हुन्ना, वो सिखा गड्डी दे स्टेयरिंग ते बहन लग्गियां भी ना जपजी साहब दीयां 5 पौड़ियां ते चौपाई साहब पढ़ लै बस। क्योंकि चौपाई साहब मैं तां कहना, गड्डी दे स्टेयरिंग ते तुरन लग्गिया तेरी जिंदगी जिहड़ी है सड़क ते खिलण लगी है। वाहिगुरू किरपा करे वापस मुड़ के बच्चों के विच आ जाइए। महाराज कहते, हमरी करो हाथ दे रचा पूर्ण होए, तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो, अपना जान करो, ये अरदास कर। मैं बेनती कर रहा सी, जदों कोई आया उन्हें सवाल किया, ए मन तैकू डेव साहब, मैं आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। ते उदों फिर आके महाराज कहते, त्यागे मन की मतड़ी, पहला कम विसारे दूजा भौ जियो, क्यों पावे हर दर सावड़ा नह लगे तत्ती। कहते आ 2 काम कर दे, बाकी दे छड्ड। त्यागे मन की मतड़ी ते विसारे दूजा, जड़ा दूज है तेरे, कदी इत्थे भी आ गया तो होर भी जाके दीवे चढ़ाते। महाराज कहते छड्ड ये काम। कहते त्यागे मन की मतड़ी। यार मैं कहना, जिस सिख दे कोल इट्टा महान खजाना होवे, ਉਹਦੀ हिम्मत किदां पैंदी है पीरां ते कबरां ते जाके मत्थे टेकण की सोच के जांदा ਉਹ। मैनू नहीं समझ आती भी ਉਹਦੇ अंदर की चलदा पिया है। मैनू नहीं समझ आती वो जाके फिर मूर्तियां नूं मत्थे टेका मंदिरां ते जाके। आ पिछले हफ्ते ना दास दा वीक सीगा बोरगमो सनयाकमो, ते उत्थे गुरु नानक दे विआह दी गल होई सी। विआह वाला पुरब मनाया गया, तो शाम के शिशरवार के दीवाना तो बाद असी घूम रहे हैं, तो नाल ही देखा मंदिर होना शनि का मंदिर। महाराज जी उत्थों भी जिन्होंने पग्गा दे विच सिर फसाए हुए आ, बन्नियां नहीं हुई, जिन्होंने सिर फसाए हुए आ उत्थों चल के आ रहे सारे। कमाल की गल, लागे इन्ना महान खजाना होवे ते फिर जेड़े पग्गां 'च सिर फसा के असी उधर जाइए, तो फिर मैनू तो समझ नहीं आती। महाराज कहते, त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भौ जियो, क्यों पावे हर दर सावड़ा नह लगे तत्ती वौ जियो। आओ हुण आपां गुरु ग्रंथ साहब की संपादना के वल जिहड़ी समा रह गया 15 मिनट आपां उहदी विचार करिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 1601 दे विच, कुछ विद्वान 1 लिखते हैं, कुछ 2 लिखते हैं। आपां इन्हां गल्लां 'च नहीं पैना, जिहड़ी मर्जी मान लिओ, गल विचों आपां तत्त लेना। महाराज ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं, महाराज ने भाई साहब भाई बुढ़ा जी नूं, ते महाराज ने भाई बन्नों जी नूं बुलाया। बन्नों जी नूं क्यों बुलाया?
एक दिन महाराज दरबार साहब दे लांघिओ लंघ रहे सन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ते उन्होंने की देखिया अंदर जिहड़े रबाबी है, रबाबियां दे कोलों अचानक कह लो मेहरबान दा लिखिया होया जिहड़ा ग्रंथ सीगा उहदे चों उन्होंने पंक्तियां बोल दी, उस चों उन्होंने पंक्तियां कीर्तन रूप च बोल दित्तियां। फिर महाराज बड़े हैरान होए, एकदम महाराज सुचेत होए भी ये की हो गया। गुरु अमरदास जी ता कह रहा आवो सिख सत गुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है, जिन कऊ नदर करम होवे हिरदे तिना। मैं कथा कर रहा, भाई साहब ने कीर्तन किया, साडा रोजगार भी है, लेकिन जिन्नी देर साडे ते महाराज की बख्शिश ना होवेगी वो जिहड़ा गाविया ते जां जिहड़ा सुनिया वो थाई नहीं पैना, बोलिया वो थाई नहीं पैना। जिन को नदर करम होवे हिरदे तिना, उन्हां दे हिरदे दे बख्शिश तो बगैर नहीं। खैर ते महाराज ने फिर उन्होंने बुलाया, ते महाराज ने उन्होंने बुलाया ते रामसर की धरती ते महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना जी सी ना वो शुरू की। मैं विचों काफ़ी प्रसंग छड्ड गया होया, मैं वो आपां समा नहीं फेक ते लवांगे। जदों उन्होंने अपने बाणी की जिहड़ी सीगी संपादना शुरू की, संपादन शब्द का मतलब ही है असल नूं प्राप्त कर लेना ते नकल नूं विचों बाहर कढ देना। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने इहदे अर्थ कीते है संपादन दे, असल ग्रहण कर लेना ते नकल जिहड़ा है कच्चा है उन्होंने बाहर एक पासे कर देना। उस समय की होया, उस समय 4 अखौती भगत आए जी, उन्होंने भी पता लगा भी महाराज एक ऐसा ग्रंथ बना रहे हैं जिहड़ा पूरे विश्व दे विच है, जिस ब्राह्मण भी बैठा, चमार भी बैठा, माफ़ करना भगत रविदास जी, लेकिन दस्सण वास्ते सिर्फ सारे बैठे है, ब्राह्मण भी है, मुसलमान बैठा है, सारे बैठे है, शींबा भी बैठा, सारे बैठे है, ते असी भी क्यों ना जाइए। उत्ते पहला फिर सब तो पहला अगे आया कान्हा जी। कान्हे नूं पुछया, कान्हा कहंदा महाराज साडी भी कुछ रचना है दर्ज की जावे। महाराज ने आदर ना बिठाया, कहंदे बैठो कोई गल नहीं, दसो तुहाडी रचना की है। रचना ते कान्हा बोलिया मैं ओही रे, मैं ओही रे, मैं ओही रे, मैं ओही रे, जाको नारद सारद सेवे, जिन्होंने सारी दुनिया कहते पूजती पई है। महाराज कहते कान्हिया तेरी इस रचना की पंक्ति दे विचों हौमे की बदबू आ रही है, इत्थे ते आवाज आ रही है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अब तू ही मैं नहीं। इत्थे ते बाबा फरीद जी कहते हैं थियो पवाही दब, निमरता की गल, थियो पवाही दब जे साई लोड़े सब, एक छिजे ब्याह लताड़ी है तां साई दे दर। इहदे अर्थ कर दियां, दरिया के किनारे उगदी हुंदी है दब। आपां सारे पिंडां दे रहण वाले आ, सानू पता, पर मैनूं हैरानी हुंदी है वे साडे आ जिहड़े बच्चे ना इन्हां नूं आउण समझ नहीं पता होना, ये एक साडे वास्ते मुश्किल खड़ी होनी है। दब उगदी है, वो दब जिहड़ी है बड़ी तिखी हुंदी है, जदों वढदे आ ते साडे हत्थां नूं ते साडीआं बाहां नूं वो पच दिंदी है, पच दिंदी समझदे ना, वढ दिंदी है, ते उहनूं वढिया जांदा ते वढ के उहदे पूले बना के उहनूं पैहे दे विच जिहड़ा आपां खिलार दिंदे आ। उस फिर पैहे दे विचों जानवर उतों लंघदे आ, गड्डे लंघदे आ, आम लोकी लंघदे आ, महीना डेढ़ महीना उत्थे पई रहिंदी है बड़े ध्यान नाल। फिर वो जिहड़ा जिन्हें वड्डी हुंदी है वो उहनूं इकट्ठी करदा, जिहड़ी उहदी माड़ी मोटी आकड़ रहिंदी है, जिहड़ी माड़ी मोटी होमे हुंदी है, जिहड़ी माड़ी मोटी उहदे अंदर सवास चलते होंगे है, उन्होंने चक के वो एक चबच्चे दे विच डोब दिंदा, कहंदा इत्थे मर जा, कहंदा 10 दिन बाद पूरी मर गई जी, सवास निकल गए, होमे खत्म हो गई। फिर उन्होंने विचों कड्ढिया जांदा, फिर उन्होंने सुकाया जांदा ते ओदियां फिर चटाइयां बनाईयां जांदियां। इदां ही बनदियां सी ना चटाइयां पहलां, फिर वो चटाइयां जिहड़ियां वो धर्मशाला विच विछाईयां जांदियां, धर्मशाला विच विछाईयां जांदियां। फिर धर्मशाला विच आके तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे चटाई ते बह के बाणी पढ़ते हैं, राम राम करते हैं, रब का नाम लेंदे हैं,
सारा कुछ करते हैं। फिर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਟਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੇ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਇੱਕ ਛਿਜੇ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ ਕਾਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਬੀਰ तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, जब आपा पिरका मिट गया, जब देखूं तत तू करता तू हुआ। अपने अंदरों सारा कुछ कहते खत्म कर, कहते ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ है वो खत्म कर। ਤੇ मैं बहुत बार बेनती की है गुरुद्वारा साहिब आउण लग्या आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ना, ये तखल्लस ਨੂੰ ला के आया करो। बाहर ही गेट ते छड़ दिते मैं आ मैं आ। महाराज कहते बिल्कुल नहीं कहते। कबीर बांस बुढ़ाई बूढ़िया ए मत बूढ़ो कोए, चंदन के निकटे वसै। बांस सुगंध ना नहीं मिलनी सुगंधी, ये चंदन है। भगत रविदास जी कहते तुम चंदन हम रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते नीच सीगा, नीच रूख ते ऊच भए, गंध सुगंध निवासा। कानिया इत्थे ते निमरता दी गल आ रही है। तू कह रहा ओही रे मैं ओही रे। पीलू आया जी, पीलू कहंदा साडे नालों सो भले जो जमदियां मूए, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਕੁਰੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸੇ ਭਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮੂਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਛੱਜੂ ਆਇਆ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਸਥ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ? 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ? 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹਨ
जिन्हां दा नामकरण भी धन धन गुरु नानक देव जी ने आप किया। नाम रखिया सी बूढ़ा, लेकिन महाराज कहते तेरियां ते गल्लां सियाणियां वर्गियां, तेरा ते ना कहते बुढ़ा होना चाहिए कहते महाराज। उस तो बाद बाबा बुढ़ा जी ओह ब्रह्म ज्ञानी हन जिन्हां ने हर गुरु साहिबान दा जीवन बिल्कुल उन्होंने नज़दीकी तो देखिया। दूसरा उन्हां दे जीवन दे विचों गुरु नानक दा सिद्धांत जिहड़ा सी लट लट करके बलदा पिया सी। मैं इहदी एक बारी व्याख्या की सी बंगला साहिब की धरती ते। वो शब्द लिया सी सुरती सुरत रलाइए ए तनकर तुल्हा लंघे जेत, अंतर पाहे अगन तू रख, दीवा बले तेरे अंदर जिहड़ा दीवा ना वो महाराज कहते बल जाएगा, कहते तेरे अंदर दीवा। वो बाबा बुढ़ा जी को देख के महाराज ने यह शब्द जिहड़ा उचारिया सीगा गुरु नानक देव जी ने। खैर बाबा बुढ़ा जी को महाराज ने कहा बुढ़ा साहिब तुसी इस महाराज के स्वरूप नूं लैके जाओ। तो महाराज नूं क्या कहते, महाराज इहनूं मैं टिकावांगा कित्थे। तो फिर महाराज ने कहा जिस कोठी ते जिस मंजे दे उपर साडा आसन है ना, उस आसन दे उपर महाराज नूं कहंदे गुरु ग्रंथ साहब नूं टिकाओ कहंदे। ते महाराज तुसी कित्थे रहोगे। ते फिर महाराज ने कहा मैं गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां दे विच धरती दे उपर भूम सैन मैंने मैं धरती दे उपर अपना कहंदे जिहड़ा सोना अपना जिहड़ा आसन है वो रखांगा। साध संगत जी अगले दिन फिर जो बाबा बुढ़ा जी नूं महाराज ने कहा कहंदे भी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सिर ते लो, ते सिर ते लैके ते गुरु ग्रंथ साहब दा आपां प्रकाश करना। उत्थे फिर देखियो उत्थे फिर बाबा बुढ़ा जी ने कहा महाराज तुसी अगे अगे चलो असी आने हैं। कहंदे अज मैं अगे नहीं, अज मैं एदे कहंदे पिछे पिछे कहंदे चलांगा। कहंदे बड़े देखो आदर सत्कार गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे अज मैं अगे नहीं, अज मैं कहंदे एदे पिछे पिछे कहंदे मैं चलांगा। ते ओ फिर बाबा बुढ़ा जी ने अपने सीस दे उपर आद ग्रंथ जिन्हों महाराज ने नाम तो सीगा पोथी परमेश्वर का थान अपने सीस दे उपर उन्होंने लिया। ते पिछे धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज चौर करते हुए महाराज पिछे पिछे आ रहे हैं। ते फिर आ करके जिस स्थान ते अज असी दरबार साहब दे अंदर जाके दर्शन करते हैं उस स्थान दे उपर बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे स्वरूप दा प्रकाश किया। ते प्रकाश करन तो पहला गुरु अर्जन देव जी कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ अदब सहत। बुढ़ा ग्रंथ खोला लिहो आवाज बुढ़ा तब बोला सुही महला पंजमा। संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया। देखो शब्द भी गुरु अर्जन देव जी दा ते अज गुरु अर्जन देव जी गुरु बन के शब्द नहीं सुन रहे। अज गुरु अर्जन देव जी संगत विच बैठ के एक आम सिख की तरह अपने शब्द नूं नहीं परमात्मा दे वल्लों जो हुक्म होया उस हुक्म नूं सुन रहे हैं। साध संगत जी एक आखिरी बेनती मैं करनी चाहांगा जो अजकल मैं देख रहा अपने बच्चों दे विच बहुत जरूरी है। तुसी विदेश की धरती ते रहिंदे हो, इस विदेश की धरती ते जिहड़ी हवा चलती है बड़ी गर्म ते बड़ी खतरनाक है। इन्हां हनेरियां तो अगर तुसी अपने इन्हां हनेरियां तो इस गर्म जिहड़ी हवा इहदी तपश तो अगर तुसी बच्चिआं नूं बचाउणा चाहुंदे हो ते सिर्फ इक्को ही तुहाडे कोल रस्ता धन धन गुरु ग्रंथ साहब दे नाल बच्चिआं नूं जोड़ दिओ। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे नाल बच्चिआं नूं किद्दां जोड़ सकदे हैं जेकर सानू गुरमुखी सानू ते साडे बच्चिआं नूं आउंदी। ऊड़ा ते जूड़ा ये दो चीज़ां दे नाल बच्चे जोड़ दिओ। बाबा कबीर जी कहंदे आ कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए अनेक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कहंदे वो निर्मल बूंद जिहड़ी है वो धरती ते इदां पवेगी,
ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋੜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ, ਬੇਟਾ घर तो बाहर जाना जिहड़ी मर्जी भाषा बोल, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन जदों पुत्र तू साडे कोल आउना, साडे रिश्तेदारां को आउना, गुरुद्वारा साहब आउना, उस समय बेटा ठेठ पंजाबी दे विच गल कर, ठेठ पंजाबी दे विच गल करनी है। आ तुहाडे बच्चिआं नूं 12-12 साल की उम्र हो गई है, हले ऊड़ा ऐड़ा नहीं होंदा। मैं कैंप ला के आया फ्रांस दे विच, 2 गुरुद्वारे साहब बबीनी ते नाल बूंदी गुरुद्वारे, 15-15 दिन के 10 के कैंप सीगे। चलो मेहनत असी कराई है, लेकिन मापियां दा भी फर्ज है, हर माँ का फर्ज है। माँ चाहे मेरी धीओ, जे तुसी चाहो तो बच्चे नूं शेख फरीद वांगू बना सकदी हो, ते जे तुसी चाहो तो तुसी उहनूं शैतान बना सकदी हो। ये तुहाडे हत्थ विच है। मेरी गल का गुस्सा ना करियो, क्योंकि साडे कोल उदाहरणां पईआं। माता जदों भी सिੱਖੀ दे विच किते ओदी जिहड़ी बेड़ी है डोलण लगी है ना, ते तुसी देखो मावां ने, औरतां ने, बीबियां ने कमर कसा करके अगे आईयां। गुरु नानक तो जदों गुरु अंगद देव जी नूं गुरता अगे दित्ती ते लंगर च तोट आ गई, ते लंगर का सारा प्रबंध माता खीवी जी ने सांभिया, और उन्हां दा नाम है गुरु ग्रंथ साहब। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शो, पतराली लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर घियाली। माता खीवी जी ने, फिर अगे माता गंगा जी ने सारा लंगर का प्रबंध सांभिया सीगा। सो कहण तो भाव चलदियां चलदियां माता गुजर कौर जी, माता गुजर कौर दे अंश बंश विचों हो तुसी मेरी धीओ ते भैणो। इस करके अपने बच्चिआं नूं गुरमुखी दे नाल, बच्चिआं नूं पंजाबी दे नाल जोड़ दो, तां जो आने वाले समय दे विच जिहड़ी सिੱਖੀ है ना, वो इन्हां दे मोढियां ते सिੱਖੀ ने राज करना। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी का बहुत धन्नवाद। सब तो ज़्यादा धन्नवाद इस घर दे ग्रंथी साहबाना का, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी और भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी का मैं तह दिलों धन्नवाद करदा। साध संगत जी, बड़ियां प्यारियां रूहां हन। बहुत घट गुरुद्वारियां दे विच इदां दे हसमुख बाबे मिलते हैं। इन्हां दा नाम मैं पा के चलिया हसमुख बाबा। ये हसमुख बाबे मिलते हैं, बहुत प्यारियां रूहां। तो इदां दियां रूहां नूं मैं बेनती करा, इन्हां नूं सांभ के रखण दी लोड़ है। सो साध संगत जी, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। मेरा वीर भाई साहब भाई संदीप सिंह जी, जिहड़े गुरु नानक दा सच्चा सौदा जिहड़ा एक संस्था चला रहे हैं पंजाब की धरती ते, मैं देखदा इन्हां दियां वीडियोज़ बड़े गरीबां की सेवा करते हैं। मैं कई बार देखदा पंजाब की धरती का भार तो बहुता तुसी चक्या होया। तुसी अपने ईमानदारी दे नाल दसबंध कढ़ के, जे हड़ आ गए तां, जे कोई होर मार पई तां, विदेशों तो जिहड़ी सेवा है वो पंजाबियों के वास्ते पंजाब च, क्योंकि साडे अंदर पंजाब वसिया होया, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत नहीं विचों कढ़ सकती। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली। महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। वार परियां सब